as like the screen suggests, मेरा नाम अजान है और I'm currently working as a software engineer at Arbisoft for past 7 to 8 months now. Or basically, I have been working as a software engineer, लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि मतलब किस किस्म का काम लोग करते हैं, तो it varies, जिसके बारे में भी डिस्कशन भी करेंगे, मतलब exactly what software engineers do. And what inspires me is CS. CS is a core subject, and and it's been booming in past few decades now. और आने वाला वक्त भी जो है मेरा ख्याल है उसके अंदर भी इस फील्ड की जितनी ज़रूरत है, डिमांड है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स इट. और उसके बाद योर होल डिग्री and everything like took a turn and ended up in this field. Yeah, so that's more like it. Okay, Nabil. Hello. Hi. So I'm Nabil. I graduated from LUMS last year in the batch of 2020 with a degree in computer science. After graduating from LUMS, I worked at a very small startup of less than 5 people for 2 months. That was a 2 months internship, and after that, I joined Educative in October, and I've been working at Educative since then. Educative, for those of you who don't know, it's a tech startup for which provides an online platform for courses on software engineering and data science. And at Educative, I'm basically a full stack developer where I help maintain the website, and that involves both front end work and the back end work and connecting the two. And how I got here was basically uh, most I didn't particularly choose web development myself. I just wanted to find a job in software engineering in a general sense. But for those of you who are familiar with the tech industry in Pakistan, many jobs tend to be in mobile and web application development. So that's how I ended up here. And apart from that, I really wanted to work at Educator specifically because I think lots of LUMS graduates have worked here, and I'd heard lots of good things about Educative, which turned out to be true. Yes, I've also heard great things about Educative. So Zara, do you want to go next? Sure. Hi, I'm Zahir. I'm software engineer at Conrad Labs, and I have been working there since 2019. I I graduated from Fast Newsys in June 2019, and uh, at the same time, I've started my job at Conrad. Here, I have been working on different technologies. I have been part of Razor Metrics team, and I have worked on software engineering. I've almost worked on everything. For example, I have worked on front end, back end, even on cloud level certification in AWS. Um, Beside this, I am also working as the data pipeline of my project. For why I decided to become a software engineer was while I was in my academic life. I wanted to go for master, but I wanted to explore what is there that lies in industry, what is there that we need to overcome. I actually work for overcoming the gap between academia and industry. So I basically joined industry beyond once we stop learning and what is lies behind beyond academics. That's why I started working at Con. That's all from my side. Could you touch upon the kind of work that is going on in the software development industry and the size of labor force in it? Oh. Labor force may vary from company to company. For example, I'm working at Conrad, so there are different teams, and in the time and size of team are specifically small. So able to work on different aspects of project. But there are companies there, for example, there's Ubisoft or QRMD, which have big cloud base. So in which if there is an employee that has been hired for
for example, or task of web development or front end, he will be working only on that from company to company. जी मैं इसी बात को शायद थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे ज़ारा ने कहा कि इट रियली वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि यूजुअली दो तरह की कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं। एक माइक्रो लेवल के ऊपर, माइक्रो लेवल इन टर्म्स ऑफ द लेबर फोर्स, और एक है कि मैक्रो जिनका साइज है। तो लाइक Arbisoft and there are some other companies with like 500 plus employees, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है कि लेबर फोर्स उनके तो बहुत ज़्यादा है। And then there are companies with less than 50 employees. So it doesn't actually matter on the company's strength कि उसके साइज कितना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लेबर फोर्स कितना है, बट इट रियली डिपेंड्स कि वो किस किस्म का काम कर रहे हैं और उनकी मार्केट स्ट्रेंथ क्या है, और किस किस्म के लोग काम कर रहे हैं। लेट्स से लेबर फोर्स के अंदर अब काफ़ी किस्म के लोग हो सकते हैं। जैसे अगर एक बड़ी कंपनी है, द बिग साइज कंपनी, उसके अंदर फिर एचआर के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा होंगे, उसके अंदर जो क्यूए हैं वो भी ज़्यादा होंगे। सो it's not only about the number of people, but it's about the quality of the people या position of the people जो actually काम कर रहे हैं उसके अंदर। All right. So yeah. Nabil, would you like to say something about it? I think Zara and Azan have pretty much covered it up. Agar aapke paas koi, if you have a specific question related to this topic, maybe I could add more. So moving on, what kind of roles are available for fresh graduates, and how many? Like, could you offer us some insight? Okay, so in my experience, at least, most of the roles that I came across were in some sort of mobile or web application development. उसके अलावा भी obviously roles होते हैं. Generally, most of the companies in Pakistan, they are working on making a website or an application. If you want to work on a role different than that, uske liye phir there are a few very big companies, जैसे Conrad Labs Systems Limited, who have existing softwares, and they already have big large software products that they're working on. तो उनमें jobs available होती है, and from within those companies, generally there are lots of different departments that you can choose, like cloud, quality assurance, design, front end, back end. In these large companies, they tend to have smaller teams specific for those roles. So now I think maybe in the last 1 or 2 years, अब जाके हमें डेटा साइंस की जॉब्स मिलनी शुरू हुई हैं पाकिस्तान में। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, पहले आई डोंट थिंक पहले इतनी ज़्यादा होती थी, बट नाउ आई थिंक पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की तरफ हल्के हल्के ग्रेजुअली मूव कर रही है। This is obviously this is the experience. I'm speaking from the experiences that I've been through in the last 1 year. Maybe Azan might have had a different exposure to the industry. Zara has more industry experience than me, so maybe she can add more to this. लेकिन in general सबसे ज़्यादा जो companies हैं tech में, वो they are trying to make websites or applications, mobile applications. All right, Zara, would you like to say something? Yeah, Nabil has pointed out right thing. हमारी जो industry है, that is mostly focused on web development or application development, and the industry like ML and cloud-based that are working there, but that are evolving currently, that are being promoted now. So currently, अगर आप industry में जाते हो, तो mostly आप, if you are going to industry, and you can ask for is job for a software engineer, or you can ask for a job for QA. That is the basic job for the fresh graduates. There are some other titles too. For example, you can be data scientist or data engineer, or you can also work as an associate engineer, where you provide for what is being done in the industry rather than directly on the software engineering side. So this is what it is happening currently. Yeah, but as you move forward, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, for example, आपके लिए roles खुलते जाते हैं. Mostly startups में,
as I'm working at Cornell Lab, we work with startups, so हम लोग इस तरीके के लोग देखते हैं who are all rounded. So if there's someone who has come and we want to work on QA, so we evaluate her QA skills and all that stuff. So, or if someone has come on for software engineering on this side, we mostly look at their programming and their concepts and all these things. But currently the jobs are getting more and more evolved and getting more and more specific towards embedded data science and this stuff too. All right, thank you. Could any of you talk a bit about the career progression opportunities in this field? Yeah, maybe I can take a start. So मेरे ख्याल से तो whenever you graduate, तो जैसे ज़ारा ने mention किया कि there are like very few like job positions available. Let's say software engineer QA, ठीक है, और वक्त के साथ साथ जो है अब डेटा साइंस और चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन मेनली जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ जनरल रोल होता है, और उसके अंदर भी कंपनीज के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर भी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी डिफरेंट रोल्स होते हैं, मतलब ये कोई वो स्पेसिफिक टर्म नहीं है कि मतलब आपने यही काम करना है. सो करियर प्रोग्रेशन की बात ऐसे ही है, ज़ारा ने भी मेंशन किया कि जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता रहता है, विद नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 1 2 3, आप उसके बाद एक स्पेसिफिक फील्ड की तरफ जाते रहते हैं. आप विद द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम आप ऑलराउंडर नहीं रहते, आप एक फील्ड एक साइड को जो है ना वो स्पेसिफिक कर लेते हैं. लेट्स से आप से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, फिर प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो अल्टीमेटली जाके आप जो है लेट्स से कि आपकी फील्ड जो है आपने वो एक एरिया स्पेसिफाई कर लिया डेवऑप्स का, राइट. सो यू विल ग्रो इन डेवऑप्स के अंदर फिर पोजीशंस होंगी, सीनियर डेवऑप, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, और अल्टीमेटली जो है वो आप एक फाइनल पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएंगे जी, जो कि मोस्ट सीनियर पोजीशन कहलाती है. तो प्रोग्रेशन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, और मेरा ख्याल है जिस तरह लैंग्वेजेस बढ़ती जा रही हैं, अगर आपने अंदाज़ा किया हो अभी इंडस्ट्री के अंदर स्टैक ओवरफ्लो का भी रिव्यू आया था, तो लैंग्वेजेस, कोई पुरानी लैंग्वेजेस भी दोबारा आगे आ रही हैं, कुछ नई लैंग्वेजेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं. पुरानी लैंग्वेजेस में C# जो है एकदम उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, और फिर रिएक्ट का ग्राफ जो है पिछले चंद सालों में ऊपर नीचे चल रहा है. पाइथन जेंगो की अगेन बहुत डिमांड है. तो नई लैंग्वेज एक रस्ट के नाम से जो है वो भी मेरे ख्याल 2-3 साल से इंट्रोड्यूस हो गई है. तो अगेन प्रोग्रेशन के अंदर एक तो ठीक है आपकी फील्ड मैटर कर रही है कि आप लेट्स से डेवऑप्स में काम कर रहे हैं, बैकएंड में काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, फिर उसके अंदर इतनी कैटेगराइजेशन है लैंग्वेजेस की. एक कंपनियां को कहती है कि हमें सिर्फ सीनियर गो रिसोर्स चाहिए, एक कंपनियां को कहती है जी हमें सिर्फ सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर चाहिए, लेकिन उसको सारा कुछ जो है वो C# पे आता हो, राइट. सो इस हिसाब से तो बड़ा नैरो डाउन अल्टीमेटली अगर आप करते रहें तो देयर विल बी अ पोजीशन, देयर विल एक्चुअली नॉट बी अ पोजीशन कि आप कहें कि जी यहाँ तक जो है मेरी करियर प्रोग्रेशन रुक गई है, इसके आगे तो कोई नई चीज़, रोज नई लैंग्वेजेस नए वर्जन रिलीज होते जा रहे हैं. तो विद दिस इंडस्ट्री इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, तो देयर इज लाइक 100% chances of progression at each step. And I would just like to add to that कि even outside of software engineering भी आपके career progressions हो सकते हैं. So for example, in educative, my current program manager, he started off as a full stack developer in the same role that I am right now, and then he eventually became, not a program manager, a product manager. तो बिजनेस साइड पे लोग चले जाते हैं, एंड दैट डजंट मीन कि उनका जो डेवलपमेंट वाला एक्सपीरियंस होता है वो ज़ाया होता है, फिर उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि वो बस प्रोडक्ट मैनेजर बन गए. दैट्स नॉट द केस. वो वाला एक्सपीरियंस वो बहुत वैल्यूएबल होता है उनके लिए भी. तो दिस स्पेशली गोज आउट फॉर पीपल जिनको लगता है कि वो सुबह शाम दिन में 8 घंटे हर रोज कोडिंग नहीं करना चाहते अगले 10 साल 10 15 20 सालों तक, लेकिन वो राइट नाउ दे आर फाइन विद इट, दे डोंट माइंड कोडिंग बट दे डोंट वांट टू बी कोडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स. तो इस तरह के भी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स होते हैं, नॉन डेवलपमेंट रिलेटेड, जिसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है. people who have an eye for design, they get into user experience, UI UX design बन जाते हैं. उसमें भी अब ये वाले फील्ड्स जो हैं इन लोगों के लिए भी अब इतना ज़्यादा रूम ओपन अप हो रहा है कि आप यू कैन हैव स्पेसिफिक टीम्स फॉर दीज डिपार्टमेंट्स. और आई थिंक फॉर लार्जर कंपनीज आप लोग के इस तरह के भी सेल्स मार्केटिंग वाले रोल्स भी होते हैं फॉर पीपल विद टेक्निकल बैकग्राउंड, क्योंकि लाइक इट्स नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी सेल्स जॉब जो
जो फॉर एग्जांपल बाकी की MNCs या यूनिलीवर पे होती होगी, बिकॉज इट्स वेरी इट डज रिक्वायर टेक्निकल एक्सपीरियंस, लेकिन वो जॉब रोल जो होता है वो टेक्निकल नहीं होता, लेकिन आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है. सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि करियर प्रोग्रेशन काफी ज्यादा करियर प्रोग्रेशन की ऑप्शन होती है विद इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड विद रिलेटेड डोमेन्स टू रिलेटेड डिपार्टमेंट्स टू. All right. They both have covered all the things. The only thing that I would like to add is, for example, if you have been in industry, for example, like 5 years, after 5 years, you start getting the jobs for a leader, for you become a project manager or a team manager, and you start going towards less of the development thing, but more of like contract, communicating with clients and getting the requirements and all that stuff. तो ये भी होता रहता है कि जैसे जिस तरीके से आप आगे मूव करते रहते हो, तो यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ कोडिंग एंड मोर टुवर्ड्स लीडिंग द प्रोजेक्ट्स. ये इस तरफ भी एक प्रोग्रेशन रहा करती है इसकी. Right. All right. So, given your experience and your expertise in the field, where do you think this industry is headed to? Can you talk about the future prospects? Currently, जैसे अभी आई डोंट नो, इन दोनों में से किसी ने मेंशन किया था कि फॉर एग्जांपल अभी डाटा साइंस की फील्ड खोल रही है, तो व्हेन आई स्टार्टेड आई आल्सो नोटिस दिस कि ना और हमारे एकेडेमिया में ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि मशीन लर्निंग है, और वी आर सीइंग कि ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इन द आउटसाइड वर्ल्ड, मगर पाकिस्तान में भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही. मगर IT इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग फील्ड करंटली. तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वी हैव चांसेस एंड वी ऑलवेज सी के ना ये जो ML साइड है और डेटा डीप लर्निंग साइड है, क्लाउड साइड है, ये हमारे पास कमिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. क्योंकि अभी व्हेन आई स्टार्टेड एट कॉर्नर लैब्स देयर वर ऑलमोस्ट नो एक्सपर्टीज इन मशीन लर्निंग, बट जैसे जैसे मैंने मूव किया द older employees are also getting hands on it. कि मशीन लर्निंग की हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं, हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, इस तरीके से हम लोग गूगल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है. तो दिस फील्ड विल ग्रो मोस्टली टुवर्ड्स आई थिंक न्यूअर टेक्नोलॉजी, फोर्थ जनरेशन. I would just like to add one more thing to it कि जैसे अभी पाकिस्तान में ज़्यादातर जॉब्स मोबाइल और फुल स्टैक डेवलपमेंट या की होती है, लाइक स्टैंडर्ड जॉब्स QA या फिर वेब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की होती है. तो one thing that will change is, especially with the pandemic, अब remote work बहुत जगह प्रमोट होना शुरू हो गया. Companies abroad will realize that they no longer need to hire people जो बाहरी काम करते हो. So ये इंटरनेशनल क्रॉस नेशनल जॉब्स ही प्रॉब्ली ओपन अप होंगी. आई थिंक अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो विच आर बेस्ड आउटसाइड बट दे हायर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान. तो जब ये होएगा तो फिर दैट विल आल्सो ओपन अप मोर रोल्स फॉर more roles in departments such as machine learning या फिर cloud, like hardware cloud development, जो इस तरह का काम जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा लेकिन बाहर के मुल्कों में हो रहा होता है. और स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग किसी भी चीज़ का अगर हमने ट्रेंड देखना है तो हम देखते हैं कि उसके पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल के अंदर क्या ट्रेंड रहा है. तो अगर अभी 2021 चल रहा है, अगर हम 2010 से कंपैरिजन करें कि तब कितनी मार्केट थी और तब कितनी जॉब्स थी और तब कितनी जो है अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसको अब से कंपेयर करें तो हमें ग्राफ जो है वो मेरा ख्याल है कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है. सिमिलरली आई अगेन मेंशन द स्टैक ओवरफ्लो रिव्यू. आप अपने पेज से काइंडली उसको शेयर भी कीजिएगा. दैट्स अ वेरी गुड वन पॉइंट शॉप की जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ किस तरह ग्रो कर रही है स्पेसिफिकली इन दिस इंडस्ट्री. सो और अगेन विद द कोरोना दिस कोविड, आप अगर देखें तो बाकी इंडस्ट्रीज जहाँ पे जो है उनकी सेल्स कम हो रही हैं या उनका रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, तो एक्चुअली जो कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री है वो डबल हो गई है, राइट. सो इन पाकिस्तान की जो है वो स्टॉक के वो भी देखें, अगर स्टैट्स देखें तो उसके अंदर भी जो है हमारी जो क्या कहते हैं इसको, ख़ास नाम है अपनी टेक्निकल या एक्सपोर्ट्स इस तरह का कोई नाम है इसका, तो वो भी जो है वो डबल ट्रिपल हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम. पिछले 5 सालों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही है. सो टू कंक्लूड, मेरे ख्याल से तो जैसे आपने पूछा कि वेयर दिस इंडस्ट्री इज हेडेड, तो अपेरेंटली इट्स हेडेड इन राइट डायरेक्शन, इन ग्रोइंग डायरेक्शन. तो yes. Right.
Thank you. As you all have already mentioned, most of the roles available are in the mobile and web development. But many people have the question that how does web and app development differ from software development? How do you choose one? What's the difference? Basically, what's the difference is that as software engineering, when you go for a job of software engineering, you get to experience both web development or app development. यानी कि for example, I'm working as a part of Razor Matrix team, जैसे मैंने mention किया. I was working for web development पहले, अब I'm developing its application, its Android application अब now. तो इस तरीके से होता है कि when you start with software development, you can have multiple, you can taste multiple side of IT industry. लेकिन जब आप वेब डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में चले जाते हो तो there are chances that you might lack of tasting what's like on the other side. कि आपने जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको इतना नहीं पता होगा कि वेब डेवलपमेंट में क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, या फिर किस तरीके से आपने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है. बेसिक नॉलेज वैसे ऑलमोस्ट हर किसी को ही होता है. या अब जैसे जो रेगुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें भी इवेंचुअली अगर वो सॉफ्टवेयर कोई ना कोई यूज करे तो उसका भी फ्रंट एंड बनाना होगा. अब वो फ्रंट एंड वो फ्रंट एंड जो एक वेबसाइट नहीं होगी या फिर एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन ही होगी, लेकिन वो भी फिर एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल अ फ्रंट एंड. तो आई हैवंट वर्कड इन नॉन वेब डेवलपमेंट, नॉन वेब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट रोल्स, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई इमेजिन ये वाला एक टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन वैसे स्किल इन जनरल जो है वो ट्रांसफरेबल होता है कि दोनों में आपको बैकएंड रिक्वायर्ड है, दोनों में आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक आनी चाहिए, दोनों में डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, दोनों में एक फ्रंट एंड डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा. और फिर उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू नो, इट्स अ वेरी जेनेरिक टर्म. इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्लाउड टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ऑब्वियसली दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो फिर इट्स अ मोर ओपन एंडेड टर्म. जी. और अगेन इसके अंदर भी अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज स्पेसिफिक इसको कैटेगराइज करें तो अगर हम खासतौर पे रिएक्ट की बात करें, रिएक्ट लैंग्वेज की बात करें, तो बेसिकली उसके अंदर जो वेब डेवलपमेंट है और मोबाइल डेवलपमेंट है इट्स लाइक 50 to 60% सेम, राइट. तो कुछ एरियाज होते हैं, लेट्स से कि अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन जो है वो इस स्टैक के ऊपर बनी हुई है, मीन स्टैक या मर्ज स्टैक के ऊपर, जिसके अंदर रिएक्ट इस्तेमाल हो रही है, तो इट वुड बी लाइक 60 to 70% सेम वर्ड, राइट. लेकिन अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर जाएं तो जो नेटिव डेवलपमेंट के अंदर जाएं तो उसके अंदर एंड्रॉइड डेवलपमेंट बिल्कुल अलग है, राइट. वो जावा के अंदर, कॉटलिन के अंदर वो बिल्कुल अलग से एक चीज़ है. ओएस मैक ओएस के अंदर जो अगर हम देखें डेवलपमेंट तो वो बिल्कुल ही अलग है. तो इट रियली डिपेंड्स कि आपका स्टैक कौन सा है और आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है, राइट. सो यूजुअली जो है ये डिफर करती भी है और नहीं भी करती, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर कि इसके अंदर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. सो द डिफरेंस इज लाइक के और हाँ, डेस्कटॉप वेब के अंदर अगर बात करें तो वेब के अंदर भी अगर सिर्फ ब्राउजर की बात करें तो वो एक है, लेकिन उसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अलग आ जाती हैं. और जो और भी कोई अगर लेट्स से कि प्लेटफॉर्म को नया इंट्रोड्यूस हो जाता है आज, तो उसकी फिर डेवलपमेंट अलग आ जाएगी. सो इट रियली डिपेंड्स कि आपका प्लेटफॉर्म किस तरह का है, एप्लीकेशन का स्कोप क्या है, कौन सी चीज़ किस तरह इस्तेमाल हो रही है, तो इसके अंदर वो काफ़ी वेरी करता है दोनों की डेवलपमेंट. Okay. So now we'll move on to the next phase, which is before applying. So I'm not sure if you guys felt the same way, but for example, Azan and Nabil can maybe talk about this. Jab main LUMS mein, like abhi bhi, I feel like our degree is more research oriented rather than industry oriented. और हमें as such कोई skill सिखाई नहीं जाती, and that's what I feel. So I'm not sure if you guys had the same experience, but like there was only one development course, which was software engineering. Uske alawa as such kuch tha nahi which taught us or gave us that experience, especially when it comes to this field. So I just want to know how you guys planned out your degree into with that mindset ke acha maine is field mein aana, if you guys even had that mindset to begin with. So Nabil, I'll go first. go first. So first of all, I think even though you are learning a course जिसका आप बाद में शायद इंडस्ट्री में you will never use of it, don't think about it in the sense कि हाँ इसका क्या फायदा बाद में इंडस्ट्री में तो करना नहीं है, कि हाँ मतलब कि एल्गोरिथम्स में बाद में कभी जाइस्ट्रा एल्गोरिथम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है.
सो या फिर मैं कभी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से कोई कंपाइलर बिल्ड नहीं कर रही होंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है. सो डोंट थिंक अबाउट इट इन दैट सेंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जस्ट द फैक्ट दैट यू कैन train your ability कि मैं नई चीज़ें सीख सकती हूँ, just that ability will help you a lot in the software industry, क्योंकि you will always be learning new stuff. React अभी चल रही है, 5 साल बाद React completely overhaul हो सकती है, we never know. Technologies they change overnight, कुछ भी हो जाता है. jQuery अब बहुत obsolete consider की जाती है. The only people who use jQuery are the ones जिनके पास legacy systems jQuery बने हुए थे, but like nobody who makes a new software makes it on jQuery. So I'm just giving you an example के कि you don't have to specifically learn technology या फिर specific course, specific domain within computer science. दूसरी बात यह आती है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो हम जो लम्स में पढ़ते हो that's more of an academic, वो आपकी बात सही है कि that's more of an academic पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाती है, और इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री जो है that's इंडस्ट्री जो होती है बिजनेस के पीछे जाती है, they are after money. इंडस्ट्री will look for things which will help them make money. पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है अभी करंटली इस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड है कि everyone needs more websites and more mobile applications built. हर किसी को एक अपनी एक फूड पैंडा टाइप एप्लीकेशन चाहिए जहाँ से वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सके. Everyone is going into online retail. So that I'm just giving an example कि हर किसी को एक वेबसाइट चाहिए. So तो बिजनेस जो इंडस्ट्री है वो बिजनेस को फॉलो करती है, और बिजनेस जो है वो इकोनॉमी से वो एक लंबी कहानी है, वो फॉलो होती रहती है. अब अगर आप बात करिए कि इसका फायदा क्या, हम कंप्यूटर साइंस में इतनी 4 सालों की डिग्री में सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स था जिससे ये होता है, तो ये एक क्लास का आई नो अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ ड्रॉबैक या आपके मोस्ट ऑफ योर स्किल्स वोंट बी डायरेक्टली अप्लाइड in the job that you do, but this will probably be true for whatever job you are doing, even if you're not doing mobile web application development. जो भी आप जॉब करेंगे, whatever job you do will only be using up 20% of your degree directly at max. मतलब कि if I become a cloud developer या networks engineer, तो उस केस में भी मुझे फिर network से कोर्सेज के फायदे होंगे, बाकी चीज़ों के फायदे नहीं होंगे. So मतलब कि basically what I'm trying to say is कि don't take this as a bad thing. Just focus on your academics. बाद में अगर आपके academic interests हैं वो you can pursue them, और बाद में masters में भी बहुत फायदा होता है. और अगर आप स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री बात कर रही हैं तो फिर उस पर यस इट्स ट्रू कि सबसे ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस की मोबाइल वेब एप्लीकेशंस चाहिए होती हैं, लेकिन देयर आर वेज यू कैन वर्क अराउंड दैट. जस्ट टेक अ कपल ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज टू लर्न रिएक्ट, मीन स्टैक वगैरह. आई पर्सनली कंप्लीटली फ्लंक द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स. मैंने सारी रिएक्ट थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स के बाहर से खुद से सीखी थी, और बाद में ऑन द जॉब मैंने और सीखी थी. So I'm not saying you have to do it my way. I'm just giving an example कि ज़रूरी नहीं है कि अपनी आपके जो जॉब के स्किल्स है वो आप अपने हर कोर्स में आप सीख रहे हैं. Okay, I'll keep that in mind. और आपने चूंकि खास लम्स का जिक्र किया, तो ये बात दरअसल लम्स स्पेसिफिक भी नहीं है. अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपने कहा कि लम्स इज रिसर्च ओरिएंटेड, तो देयर आर यूनिवर्सिटीज जो कि सिर्फ इंडस्ट्री ओरिएंटेड है. ठीक है, तो वहाँ पे भी मसला है कि मतलब अगर आप 100% रिसर्च ओरिएंटेड है उसमें भी मसला है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है उसमें मसला है. बैलेंस होना चाहिए डिपार्टमेंट्स के अंदर, और यूनिवर्सिटीज को मतलब दोनों ऑप्शंस जो है वो देनी चाहिए स्टूडेंट्स को. आगे स्टूडेंट्स की मर्जी है कि वो किस ट्रैक के अंदर जाना चाह रहे हैं. सो there are like many reasons people not opt for jobs and opt for the grad studies. वो मेरा ख्याल है वो तकरीबन वो रीजन सभी जानते हैं. तो अगर तो इफ यू आर लाइक वेरी मच रिसर्च ओरिएंटेड और आपको लगता है कि मतलब आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, तो आप ज़रूर उसको जो है वो फॉलो करें. अगर आपको लगता है कि यू कैन परफॉर्म बेटर इन इंडस्ट्री विद द टाइम सब सीख लेते हैं, तो विद द टाइम आप जो है वो इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और पोटेंशियली ग्रो कर सकते हैं. हाँ, अब जो लम्स के कोर्सेज की जैसे आपने बात की है, तो आई बिलीव विद द एडिशन ऑफ फ्यू फैकल्टी मेंबर्स रिसेंट लाइक 3-4 इयर्स के अंदर, तो वो ट्रेंड चेंज हो रहा है पहले से, कि मतलब वाकई जो है इंडस्ट्री जो है वो लम्स के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी है, और लम्स के स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता. लाइक जैसे आपने एक इवेंट जो है वो एक पैनल टॉक रखी है, दैट्स मोरली फोकस के लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कि इंडस्ट्री के अंदर हो क्या है. दैट्स अ वेरी गुड जो है वो स्टार्ट है. इस चीज़ के बारे में लोगों को पता होना चाहिए. फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेंड सेट हो जाता है और लोग चले जाते हैं. एंड इस बारे में लास्ट जो है मैं बात ये करूँगा, जैसे नबील ने भी कहा कि यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं वो लाजमी नहीं है कि आपको
इफेक्ट कर रहे हो, और एक्चुअली मतलब आप रिएक्ट सीख भी ले, लेट से ये रिएक्ट की बात हो रही है, ये कोई भी आप स्टैक सीख भी लेना, तो फ्रेश ग्रेड की जो पोजीशन होती है ना, उसके लिए जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर वो कभी आपसे ये नहीं पूछते कि मतलब आपको जो है कौन सा एग्जैक्टली स्टैक आता है और आपने उसके ऊपर कौन सी जो है वो चीज बनाई है। वो स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक से। अगर कोर्सेज के मैं नाम लूँ तो वो एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर्स और 1 2 3 कोर्सेज 4 कोर्सेज होंगे बेसिकली, जो कि आपके पूरे इंटरव्यू के अंदर आपके डेटाबेसेस है। आपके इंटरव्यू के अंदर आपके जो है टेक्निकल इंटरव्यू, एमसीक्यूज और ईच एंड एवरीथिंग, उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसी के अंदर ही कवर हो रही होती हैं। सो अगर तो उन कोर्सेज को आप बेसिस बना के जो है वो लेके चलें, और यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली वो डेप्थ जो है वो कवर नहीं करती, वो ब्रेथ कवर करती है, खासतौर पे बैचलर्स में। तो दैट्स टोटली ओके अगर आप जो है वो किसी एक चीज़ के अंदर आपको नहीं लगता कि आप जो है वो परफेक्ट हैं, तो लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी भी आती हैं तो दैट्स ओके। बस जो एटीट्यूड है वो मैटर करेगा कि आप जो है वो सीखना कितना चाह रहे हैं कोई भी चीज़। Okay, Zara, do you want to add anything? इन्होंने वैसे सब कुछ कवर कर ही लिया, जैसे कि ना मोस्टली दैट मैटर इज कि ना जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनना भी चाहते हो तो मतलब दैट यू विल लर्न के पहले 3 महीने में जब आप आओगे आपकी ट्रेनिंग होती है, आप वहाँ से सीख लोगे। मगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ ड्यूरिंग इंटरव्यूज भी देखी जाती है वो यही है कि ना आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं और आप कितने फास्ट लर्नर हो। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू हैव अ टेस्ट ऑफ इंडस्ट्री अपने बैचलर्स लाइफ में, तो आई विल से कि ना आप लोग कहीं पे ना इंटर्नशिप कर लो किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर लो। उससे आपको ना थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और हाउ इट डिफर्स फ्रॉम एकेडेमिया। तो दैट्स ऑल। Okay, so the next question was about skills, but I think Azan did cover algorithms and data structures. Does anyone else want to touch upon like some skills they think is absolutely necessary before, like, you know, you even think of applying, you need to have those skills? Does anyone want to touch upon those as well? I think Azan ने काफी तक कवर कर लिया था. One thing that I'll just add is कि different companies have different hiring policies. Some companies वो उनका जो इंटरव्यू में होता है, it's sort of like a Viva of CS 200, CS 200, 202, data structures, object oriented programming और databases का एक सा Viva दे रहे होते हैं. But कुछ कंपनीज वो होते हैं, वो they have a more directly problem solving orientation of an interview, जिसमें आपको वो कोडिंग प्रॉब्लम देंगे और आपने कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है. Many companies also have an overlap in between, like a combination of the two, कि आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, but like आपसे ये भी पूछेंगे कि हाँ डेटाबेसेस की ये क्वेरी लिखकर बताओ, object oriented programming में what's polymorphism for example. So ये if you're applying to companies तो आप ये देख लेना कि उस कंपनी में hiring process में क्या यूज करते हैं. You don't have, like, I personally disagree with one of those 2 methods of interviewing, लेकिन the companies की ये होते तो आप it's better to be prepared for both those. कि main एक है कि problem solving की coding problem है, ये इस question को, इस प्रॉब्लम को एक सर्टेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व की जाए. एंड द सेकंड इज कि basically, like, you know, how good are your concepts on paper, कि databases, object oriented programming और data structures के concepts on paper कैसे हैं आपके. Okay. Just to add on it कि मतलब जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, I never feel कि ना मुझसे exactly ये पूछने का चाहिए इस complexity में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, ये इस तरीके से दिखाओ. What they do mostly in interviews is कि ना they put out a problem और ना फिर वो आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो what is important is कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व बोथ कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं और आपकी टॉकिंग स्किल्स कैसी हैं, कि आप मतलब कोई अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है तो आप उसको समझ रहे हो, कोई आपका कोई मदद कर रहा है तो आपको उसकी मदद को सही तरीके से ले रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल कोई एज केस कराना चाह रहा है तो जब वो बोल रहा है तो आपको समझ आ रही है, अच्छा जी मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे सही कर देना चाहिए, इसका अलावा और क्या हो सकता है. तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों और आपकी टीम बिल्डिंग और टीम में आपको काम करना आना चाहिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज सीन कि आपने एकेडेमिया से निकल के और क्या क्या किया है. तो आई विल जस्ट से कि ना आप ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लो, सोसाइटीज ज्वाइन करो, उनको लीड करो, इस तरीके की चीज़ों में ना काम इन्वॉल्व रहो कि आपको एक यानी कि विद बंच ऑफ पीपल आपको काम करना आना चाहिए कि दूसरे की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे का अपना पॉइंट कैसे समझाना है.
और ये सब. Yeah, I agree with her. A student can be, a perfect 4.0 student, but if that student, they just work on themselves, work with themselves without other people, they don't have very good social skills, so ये मसला हो सकता है job में. Yeah, I think collaboration is very important in general. ऑन स्किल्स एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि मैं शायद उसको ज़्यादा फोकस करूँगा, वो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है. नबील ने प्रॉब्लम सॉल्विंग का जिक्र किया और ज़ारा ने बेसिकली बताया कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और उनको डेवलप करने के लिए ना बड़ा आसान सा एक तरीका है कि जिस भी कंपनी के अंदर मैंने भी लास्ट ईयर का अगर मैं हायरिंग प्रोसेस बताऊँ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, वो तकरीबन 60 to 70% कंपनी जो है ना वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट आपका जरूर लेती हैं. दैट्स काइंड ऑफ कि आपको वो दे देती हैं कि ये इनपुट है, ये आउटपुट आनी चाहिए बेसिकली. तो उसको डेवलप करने के लिए ना वो अगेन दोज आर बेस्ड ऑन योर एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर कोर्स, राइट. लेकिन उसको एक्चुअली ऐसे सोच के करना कि वो असाइनमेंट के अलावा भी आप उसके ऊपर फोकस करें. लेट्स से कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉम्पिटिशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, और अगर आप सिंपली किसी लीड कोड के ऊपर चले जाएं, कोड निंजा के ऊपर चले जाएं, देयर आर लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. लीड कोड के ऊपर 100 प्रॉब्लम्स ही अगर आप देख लें ना, so if you can solve those problems, उनमें से अगर आप 60 to 70% कर सकते हैं, then you can easily land into any job after like your graduation in Pakistan, right? क्योंकि वो इतने जो है वो उसके अंदर आपको जो है वो सारे जैसे ज़ारा ने जिक्र किया कि आपको वो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ना जो स्टेप्स हैं वो भी पता चल जाते हैं. उसके अंदर आप एज केसेस भी कवर कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी उसके अंदर काइंड ऑफ कवर हो जाती है कि लेट्स से कि एक तरीके इस चीज़ को मैं इस तरह कर सकता हूँ तो इसमें मैं बेहतर भी कर सकता हूँ. वो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है. उसके लिए एक मैं मेंशन करूँगा कि गूगल किक स्टार्ट के नाम से जो है वो पिछले 1.5 साल से जो है वो कॉम्पिटिशन चल रहा है. एक साल के अंदर 8 या 9 कॉम्पिटिशन होते हैं. आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, गलत करें सही करें, पार्टिसिपेट तो करें कम से कम. आप अगर स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेट करना, आपको समझ आएगी कि आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, बेसिकली दुनिया के अंदर कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, अपनी कंट्री के अंदर कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, अपने जो ग्रेजुएट्स आपके हो रहे हैं, जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आप कहाँ रैंक कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है, किस एरिया में मेहनत की ज़रूरत है, राइट. सो अगेन आप जैसे आप सोसाइटीज़ ज्वाइन करें और आप एक्चुअली कंपटीशन में हिस्सा लें, फुल पार्टिसिपेट करें. लोगों का अक्सर ये होता है कि जी हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, हमें तो आता नहीं है. कोई बात नहीं, अगर नहीं आता एक में जाएंगे तो आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा ना कि वो किस तरह है. फिर अगली दफ़ा आप उसकी तैयारी करके जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो आप अल्टीमेटली जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि मतलब ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है. Okay, so now we'll move on to the next phase, which is like the actual application process. So firstly, how should one, even start looking for jobs? Like you guys could maybe tell, how did you come across this particular job that you're doing? Yeah, just Nabil started working at a startup. How did you even, come across that opportunity? Okay, so I think CS में relative to other disciplines job ढूंढना I think सबसे आसान है right now. जिस तरह से jobs की demand खुल रही है, तो काफी सारे platforms होते हैं. एक तो आप लोग को CSO से I think सबसे ज़्यादा जो emails आती है job openings की, वो I think probably computer scientists की आती होंगी. इस दफ़ा I don't know if आप लोगों का CSO वाला event हो रहा है, career fair हो रहा है, but हमारी दफ़ा career fair भी हुआ था. I also got like a couple of interview calls through the career fair. वो हुआ था. कुछ एक दो कंपनी से लम्स में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स की थी. आरबी सॉफ्ट, 7 वेल्स और 9 वेल्स, आई थिंक 7 वेल्स ने रिक्रूटमेंट ड्राइव की थी. उसके अलावा आई थिंक यू शुड आल्सो मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल. लिंक्डइन प्रोफाइल से भी मिल जाती हैं. देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड angellist.co, angellist.co. वहाँ पे a lot of job postings are posted for startups. बहुत है. Networking के थ्रू भी आती है कि if you know a senior who's working at a company, तो you can contact them to ask कि आप लोग का hiring process कैसे है, and they often get you a referral. I personally जो जहाँ पे मैंने 2 महीनों के लिए contact किया था, जहाँ मैंने 2 महीनों के लिए काम किया था, at that company that offer I got through LinkedIn. Basically the recruiting manager saw my LinkedIn profile कहीं से, and he contacted me for interview, and वहाँ से I got the job. And currently my job at Educative, I knew a senior who was working here. He used to be my TA काफी पहले, and तो उसके through मैंने पूछा कि what's the hiring process like. उसने मुझे he gave me a few tips, and that's how I got an interview. और फिर उसके बाद I had to prepare for the interview. So ये 4-5 methods होते हैं.
I forgot to mention some instructors are also very helpful. Sir Fareed Zafar is very helpful. Sir Suleiman Shahid is very helpful from what I've heard. तो ये 5-6 modes हैं जिनके through you can go basically. Zara? LinkedIn प्रोफाइल अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। गौतम तो करुणा सिंह आप मतलब कैरियर फेयर्स नहीं हो रहे होते हैं और ना ये सब होते हैं, क्योंकि मैं नया ग्रेजुएटेड तब कैरियर फेयर हुआ था, मैं वहाँ पे गई थी, इक्विपमेंट ड्राइव्स थी और वो सब थी। तो लिंक्डइन प्रोफाइल अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज हम लोग भी जब अब हायरिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग देख रहे होते हैं अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसी है उसकी। उसके अलावा देयर इज अ थिंग कि ना बट नबील ऑल्सो मेंशन कि मुझे कॉन्रेड से इस तरीके से ऑफर आई थी कि माय सीनियर यूज्ड टू वर्क एट कॉन्रेड्स, वो वहाँ पे इंटर्न थी तो उन्होंने मुझे रेफर किया था। फर्स्ट आई गॉट ऑफर फॉर एन इंटर्नशिप, पर मैं उस दौरान इंटर्नशिप नहीं कर पाई थी, फिर दे डायरेक्टली कॉल मी फॉर द जॉब। तो इस तरीके से हुआ था। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव नेटवर्क्स आउटसाइड योर बैच टू, कि आप जानते हो लोगों को, दे नो कि आप किस तरीके से काम करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाउ आई हैव लैंडेड एट कॉन्रेड लैब्स। अभी भी मुझसे पूछा जाता है अच्छा कोई अच्छा जूनियर है तो बता दें, कोई अच्छा जूनियर है तो बता दें। तो इस तरीके से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्टैक्ट्स आउटसाइड आपके बैच के हों। उसके अलावा अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव लो। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी कंपनी, तो आप ना उसकी वेबसाइट पे जाओ, देखो कि क्या काम हो रहा है, और आप उनको डायरेक्टली ना एक ईमेल कर दो विद योर सीवी कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन जॉब एट योर प्लेस। क्योंकि करंटली सेइंग लुकिंग एट द इंडस्ट्री, हर जगह जॉब ओपनिंग्स हैं, हर जगह रिक्वायरमेंट ज़रूर है। तो आप अगर भेज दे तो दे माइट कंसीडर यू। और इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग कि ना अच्छा जी आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, मगर यू आर नॉट फाइंडिंग एनी ईमेल कहाँ पे भेजना है, तो आप देखो और ये मेरी सीवी है, और offer me a job, or if you can have an interview with me, so that would be great. तो इस तरीके से आप अपना रीच आउट कर सकते हो। That's all. Okay, Azan? I believe that's a very comprehensive conversation done already on this topic. Okay, so the next question is, जैसे Zara ने कहा है कि if you find a company which you think is a good company and you just want to work there, तो उनको email कर दो. But is there something that people need to be mindful of while, even considering a company? As in, कोई factors होते हैं that one should keep in mind? Yes, there are multiple factors वैसे तो, for example, environment कैसा है, कंपनी साइज भी मैटर करता है, पर मेरे लिए जो बेसिकली मैटर करता है कि ना एनवायरनमेंट कैसा है, कि हाउ इज इट फॉर द गर्ल, फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू अ फैमिली जो थोड़ी ना बैकवर्ड सी है, तो इट वाज हार्ड फॉर मी इवन टू गेटिंग इनटू इंडस्ट्री। तो ऐसी कंपनी ढूंढना जिसमें हरासमेंट वगैरह ना हो, ये चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर की थी। तो व्हेन आई रेफर टू माय सीनियर, तो आई सॉर्ट आउट कि अच्छा जी किस तरीके का एनवायरनमेंट है। इसके ऊपर मैंने बहुत लंबी डिस्कशंस हुई थी अपने सीनियर्स के साथ। तो दिस इज वन थिंग दैट मैटर्स। सेकंड थिंग जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, वो दैट वाज लोकेशन ऑफ अ कंपनी। आई लिव भेरिया टाउन, बहुत दूर है वो। तो आई डिड नॉट अप्लाई फॉर एनी कंपनी दैट वाज इन डीएचए, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पेंड हाफ ऑफ माय लाइफ ट्रैवलिंग। तो आई वाज मोस्टली फोकसिंग ऑन कि गुलबर्ग में कहीं पे मिल जाए, या फिर मुझे जौहर टाउन में कहीं पे मिल जाए, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस वेयर गुड सॉफ्टवेयर हाउस लाइज। उसके अलावा सैलरी पैकेज does matter, because when I was going through the hiring process, मैंने ये देखा था, ये चीज़ मैंने नोटिस की थी कि वो the companies with big names offer you a less salary than the company with like सही नाम होता है, मगर they offer you more salary। तो इस चीज़ को आप देखना है, because you are working there, environment कैसा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, मगर आपने अपने लिए कमाना है, आपको अपना घर वालों को सपोर्ट करना है। तो if it's offering you a good package, तो आप उस तरफ जाओ। मगर इफ देयर इज अ थिंग कि ना गुड पैकेज है, मगर यू आर थिंकिंग आपको ये हो रहा है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट मेरे लिए नहीं सही, तो आप उस कंपनी को छोड़ दो। आई हैव डन दिस। मुझे एक बहुत अच्छी जगह से बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर हुए थे, बट आई लीव दैट कंपनी फॉर कॉर्नर लैब्स बिकॉज़ इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। और एक और चीज़ जो मैटर करती है, दैट इज़ कि ना आई थिंक दैट्स ऑल। कुछ और बाद में आएगा तो मैं बता दूँगी। Right. How much depth should a development project have on your CV? Are there any keywords that you should be including? CV के लिए
there are actually some general guidelines. आप किसी भी जो है अच्छी कंपनी let's say गूगल किसी भी गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि किस तरह क्या चीज़ होनी चाहिए. सो मैं थोड़ा सा जो है उसके बारे में ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लिखें विच आर लाइक इम्पैक्टफुल. डू नॉट राइट के हम इतने लोग थे इसके अंदर, हमने ये किया या ये प्रोजेक्ट है. आप नंबर्स में बात करें कि जी हमने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो इतने नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकती है, और उसके अंदर लेट्स से कि हमने इतने एरियाज कवर किए हैं, इतना ये है. सो क्वांटिटेटिव बात करें आप. क्वालिटी ठीक है मैटर करती है, लेकिन क्वांटिटेटिव जो है वो ज़रा इम्पैक्टफुल होती है, आपको नजर आ रहा होता है. आप कहें जी हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व किया हमारे लोकल एरिया के अंदर, राइट. सो इसके अंदर से इतने जो यूजर्स हैं वो उनको फायदा होगा और इतना लोड हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप कहें. और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट लाइव है तो डू मेंशन इट्स यूआरएल, या ज़रूर लिखें कि जी देखें हमने ये एज अ स्टूडेंट बनाया था. आमतौर पे हम एज अ स्टूडेंट ही काम करते हैं. एज अ स्टूडेंट मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, देखें जी इट्स लाइव, इसके अंदर ये चीज़ें मेरी डन है, मैंने की हुई हैं. और जो कंप्यूटर साइंस की जो सीवी होती है ना, इट्स वेरी स्पेसिफिक. मतलब आप एक साइड पे अपनी एजुकेशन लिखें, एक साइड पे आप लिखें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डन, राइट. और उसके अंदर मेंशन करें कि ये इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या यूज़ किया है, या ये वाली लैंग्वेज आपको आती है. डोंट राइट टू मच. लोग लिखते हैं कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. ऐसे ना करें. मतलब दो तीन चार चीज़ें मैक्सिमम लिख लें, लेकिन उसके अंदर लिखेंगे जी आपकी कितनी उसके अंदर प्रोफिशिएंसी है, आपको कितना आता है. और टू दी पॉइंट लिखें बात. Would anyone like to add on to that? I think Nabeel ने काफी कवर कर लिया, बस I will say कि ना don't brag. All right. ये स्किल सेट के मुताबिक आपसे क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपने कोई चीज मेंशन की है तो मेक श्योर कि वो आपको आती है. Okay. Yeah, definitely. You should be prepared to talk about it and back it up. Definitely. Right. So, I'd like to know what is expected from an ideal candidate. Like, what qualities should they have, or what should they be doing? एक I चीज़ think मैं this is ज़रूर covered जिक्र in कर all सकता the. हूँ. जी सॉरी ज़ारा ने मेरा ख्याल है पहले कवर किया था कि मतलब आइडियल कैंडिडेट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए. एक चीज़ में जो है वो कंपनीज ढूंढती हैं जो ऐसा बंदा जो उनके साथ लॉन्ग टर्म काम करे. तो मेक श्योर कि आप उनको कन्विंस कर सके कि आई विल एक्चुअली वर्क. आप स्विच नहीं कर जाएंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बिकॉज कंपनी इन्वेस्ट इन यू फॉर एटलीस्ट लाइक फर्स्ट फ्यू मंथ्स, राइट. सो 3 महीने लेट्स से अगर आपके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपकी कहीं पे किसी टीम के अंदर आपका काम आ रहा है और आप एक्चुअली उनको काम करके दे रहे हैं, वो 6 महीने बाद वो प्रोसेस आएगा, राइट. सो मेक श्योर कि आप जो है उनके साथ कमिटमेंट करें, जितनी करें उतनी पूरी करें. आप इंटरव्यू के अंदर मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने जो है लेट्स से सोचा कि मैंने इतने साल काम करना है या आपका ये इरादा है ग्रे एरिया में ये, सो ये ज़रूर बात करें. बिकॉज काफ़ी कंपनीज जो है ना इस चीज़ के ऊपर मेक और ब्रेक स्टेटमेंट उनकी होती है कि मतलब आप कब तक काम करेंगे हमारे साथ, या हमें लॉन्ग टर्म चाहिए बंदा या शॉर्ट टर्म चाहिए. सो बाकी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है वो ज़ारा ने मेंशन कर दी थी कि कौन सी स्किल्स चाहिए और किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए. ये चीज़ एक मुझे लगता था कि ऐड करनी चाहिए. Yes, just be honest during the interview. Just be honest, because I remember मैंने mention किया था कि मैंने masters करना है आगे, तो they were like अच्छा ठीक है, कितने साल का इरादा है आपको masters करने का, कितने साल बाद. I was like 2 से 3 साल बाद I would go for masters. तो इस चीज को जरूर mention करें if you have कि अच्छा जी मैंने 1 साल बाद masters करने जाना है, तो do mention it. Okay, now we'll move on to the questions that we have in the chat box. पहले तो I see one about the CV, and since Zara ने भी mention किया था कि don't brag in your CV, और ऐसी ना लिख दो कि मुझे आता है even though you don't. So the question is, at what point can you list a language in your CV? Like, as in, for example, अगर किसी ने Python mention किया है, and all of a sudden, like, what degree do you need to know it to be able to mention it on your CV for the software development industry in particular? If you are मतलब मैं इस पॉइंट पे खड़े होकर कहती हूँ कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे ये सब कुछ आता है इस चीज के बारे में. यू कैन ऑलवेज मेंशन के दैट आई हैव वर्कड इन दिस.
और आई हैव इतने नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस इन दिस, या फिर मैंने इतना इस चीज़ के ऊपर काम किया है, तो ये ज़रूर आप मेंशन कर सकते हो। मगर आई विल नेवर से कि ना मैं ये कभी मेंशन करूँगी कि आई नो हर अंदर बाहर हर चीज़ एक प्रोडक्ट की, कभी भी वो आप नहीं कर सकते। तो I think there's no harm in mentioning a language अगर आपने उसमें एटलीस्ट एक कोर्स किया हुआ है। उसके अलावा इसका भी फायदा नहीं होता अगर आपने 7-8 कोर्स में 7-8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम किया है, आपके पास इतनी लंबी लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस का भी कोई फायदा नहीं होता। Just be prepared to talk about it. Putting a language on your CV isn't a lie as long as आपने एटलीस्ट एक कोर्स में आपने कोई एक प्रॉपर प्रोजेक्ट किया हुआ। बट अगर कोई सवाल पूछे तो लाइक बी ऑनेस्ट अपफ्रंट अबाउट इट कि ओह आई वर्कड इन C++ for 3 years, इसमें मेरा बहुत ज़रा सा एक्सपीरियंस है, या फिर इसमें मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो मेरी ये लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है। There's no right or there's no like a wrong answer, right or a very hard line boundary to it. if they are not asking for a specific thing, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 2-3 चीज़ें होती हैं कि आप यू आर अ गुड लर्नर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, और आपको फूड और ये डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, स्ट्रांग हो तो आपको ले लेते हैं। फिर लैंग्वेज सीखना ना सीखना वो जिंदगी भर चलता रहता है। Okay, so another question is, okay, what's the difference between the software engineering we study? So I think they're talking about the course, or जो हम industry में करते हैं. How is it different? Because you're still making an application, so. आई विल जस्ट से कि डिफरेंस इस तरीके से होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग ड्यूरिंग एकेडेमिया, तो हम लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट में काम करते हैं। एक रात होती है, हमने पूरा प्रोजेक्ट उसी दौरान बनाना है। देयर इज नो असाइन्ड डेडलाइंस नहीं होती। तो इन इंडस्ट्री देयर मोर फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस के अच्छा जी दिस इज अ टास्क, आपने 2 दिन में करना है, 2 दिन में करने की कोशिश करनी है, या फॉर एग्जांपल वी कैन नेवर से कि ना जी ये टास्क इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में करने की कोशिश करनी है, और ना आपने मुसलसल मेहनत करती रहनी है। ये नहीं होता कि जैसे आपने ना इंडस्ट्री में एकेडमी में क्या होता है, अच्छा आज काम करने का दिन नहीं कर रहे। आपने मुसलसल मेहनत करनी है और मुसलसल चलते रहना है। एकेडमी में हम क्या करते हैं, कोई हमारे इतने कोई सही से प्रोसेस नहीं बने होते। एक रात है, हमने एक रात में पूरा प्रोजेक्ट बनाने में बस आगे दे दिया। और इसमें ये भी चीज़ होती है कि रिक्वायरमेंट्स आपकी ना बदलती रहती हैं साथ-साथ ना। तो यू हैव टू जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट कि अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आपने बस खुल के उसको सुनना है, और कोशिश करनी है कि आपने ना सब कुछ अपने अंदर ले लेना है और सब कुछ सही से आगे पोर्ट्रे कर देना। Also, industry में there isn't even half as much as documentation involved जितनी हम लोग ने at least LUMS के software engineering course में की थी। तो waterfall model जो है वो अब काफी हद तक I wouldn't say completely obsolete हो गया, but like most companies, most of the jobs in Pakistan at least वो you will not be spending hours and hours on documentation। उसमें फिर 3 documentation होंगे, पहला होगा फिर SRS होगा, फिर STS होगा, मैं नाम भी भूल गया। तो इतना नहीं होता। You generally have a separate person or a separate team who's responsible for handing over the requirements to you, या प्रोडक्ट मैनेजर, और वो ना वो 15 सफों का पेज नहीं भेजते। वो या तो आप लोगों को XT फाइल्स भेजते हैं, डिजाइन इज गोना लुक लाइक, या फिर यू नो दे एक्सप्लेन इट टू यू। डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट कल्चर्स है, बट पॉइंट इज वेरी लेस डॉक्यूमेंटेशन देन द वन वी डू इन आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स। सर ने तो हमें यही के इंडस्ट्री में करोगे ये सब करवाया था, और अब ये सुनने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ ना मैं ये बोलूँगी कि ना दैट माय वराय, जैसे अभी नबील ने मेंशन किया कि उनके पास उनका प्रोसेस थोड़ा ये है, हमारा प्रोसेस ये नहीं है। वी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट कॉर्नर लैब्स खुद ही रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। वी हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद आवर क्लाइंट, और ना तो हमारे ऊपर कुछ लीड्स होते हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स लेकर आ रहे होते हैं। मगर वी आर आल्सो देयर कि हम लोग भी कॉल्स में शामिल होते हैं, तो वी नो कि क्या-क्या करना होता है, बट डॉक्यूमेंटेशन उतनी नहीं होती जितनी ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में कराते हैं। और आपको इतनी ज़्यादा इस वजह से भी लगती है क्योंकि द डॉक्यूमेंटेशन दैट गोज़ ऑन बहुत लंबे पीरियड के लिए, क्योंकि मतलब आप थोड़ा डॉक्यूमेंट कर भी रहे होगे तो थोड़ी चीज़ें एक वक़्त में डॉक्यूमेंट कर रहे होगे तो इतना आपको महसूस नहीं होगा कि अच्छा जी हम ये कर रहे हैं। Azan, do you want to say anything as the previous software engineering TA जिसने हमसे वो सारी documentation करवाई थी? So, मेरा ख्याल है कि दोनों ने बिल्कुल जो है वो सही कहा है कि ठीक है डॉक्यूमेंटेशन होती है लेकिन इतनी नहीं होती, एंड वो ये नहीं होता कि एक ही बंदा सारा कुछ कर रहा होता है। देयर आर टाइम्स, देयर आर पार्ट्स के कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन्वॉल्व होती है, लेकिन
इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर है, मतलब आप उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है मतलब। Okay. Achha, the next question is freelancing a good option for software engineers? So you guys being in the industry, do you think you guys would ever want to shift or anything like उस पे हाथ से? अगर मैं इसका आंसर ऐसे देना चाहूँ, अब मैंने ये सवाल पढ़ा है, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये है कि आप फ्रीलांसिंग साइड बाय साइड करें या फुल टाइम फ्रीलांसिंग करें, राइट? सो इसको लेट्स से एक पहलू में ये देखते हैं कि लेट्स से आप साइड बाय साइड कर रहे हैं, राइट? आप कहते हैं कि जी नहीं जी, मैं प्रोजेक्ट साइड बाय साइड भी करना चाहता हूँ और मेरी ये एक्सपर्टीज़ हैं और मैं उसको इम्प्रूव भी कर लूँगा और मैं फुल टाइम जॉब भी कर लूँगा, तो वो किसी एक बंदे के साथ में थोड़ी सी ज़्यादती है, राइट? मतलब वो अपने साथ जो है ना वो ऑनेस्ट नहीं रह सकता, मतलब दोनों टाइमिंग्स के अंदर। लेट्स से कि आपने अगर आपकी जॉब टाइमिंग्स ऐसी हैं और फिर आप उसके बाद लेट्स से 8 to 9 आवर्स शिफ्ट आपकी जॉब टाइमिंग्स की हैं और उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ भी आपको 4 to 5 आवर्स हैं, तो आप जो है ना एक पॉइंट आएगा कि मतलब आप इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आपका कोई एक काम करने का दिल नहीं करेगा, वो जो सी मर्जी चीज़ हो, या आपकी जॉब इफेक्ट हो रही होगी या आपके फ्रीलांसिंग इफेक्ट हो रही होगी। और दूसरी चीज़, एक फ्रीलांसिंग का ड्रॉबैक ये है कि इट्स वेरी गुड लाइक मॉनेटरीली, लाइक आपको पैसे जो है वो तो मेरा ख्याल है कि शायद जो आप जॉब कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिलें, ठीक है? आप थोड़ा सा काम करें वो ज़्यादा ही मिले, लेकिन उसके अंदर इसका ड्रॉबैक ये है कि आप देखें, लेट्स से आप जब भी फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो आप ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे थे जिनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है आपके कोड का भी, राइट? आपने जो भी लिखा है उनको पता ही नहीं है कि आपने क्या लिखा है। सो उनके लिए बस ये होता है कि ये जी चल रहा है, ये नहीं चल रहा, राइट? और उसके अंदर ये है कि कोड रिव्यू भी कोई नहीं हो रहा, मतलब आपने जो भी कोड लिखा है उसका ना कोई रिव्यू कर रहा है, आपने जैसे भी लिखा है वो चल रहा है, तो इसका मतलब है ठीक है। तो लॉन्ग टर्म आपका जो एम्बिशन है वो फ्रीलांसिंग, लोग फुल टाइम कर भी रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म जो है आपका एम्बिशन वो फ्रीलांसिंग मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए कि आप मतलब आप अगर एक कंपनी के साथ काम करें, उसके प्रोसेसेस हैं, मतलब जॉब सिक्योरिटी है फ्रीलांसिंग के अंदर, तो वो भी है ना कि मतलब जॉब सिक्योरिटी भी ऐसा नहीं है। इट्स गुड, आपको करनी चाहिए, लेकिन आपको डिसाइड करना चाहिए कि यार आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। आई हैव अ फ्रेंड, वो एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर है और ही इज एक्चुअली वेरी गुड इन लाइक डाटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग, एंड ही इज बीन लाइक डूइंग फुल टाइम फ्रीलांसिंग फॉर पास्ट 1.5 years और 2 years। तो बोथ ट्रैक्स हैं, अगर आप कोई एक काम कर लें, या आप फुल टाइम जॉब कर लें या फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर लें, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा ट्रैक है। Does anyone else want to discuss? Nabil? I would also say कि like Azan said, freelancing पे it's a one man team. तो उस पे वो person to person भी बहुत vary करता है. I personally I don't think I would be comfortable freelancing क्योंकि I want to have people who are smarter than me जिनके साथ मैं सीख सकता हूँ. सही है, तो ये मेरा personal point of view. There are other people जो वो खुद से बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं. They just go online and कोई चीज़ नहीं आती, they just go online and you know research a new technology and learn a whole new stack by themselves and do a new project. For me, that's a little get out of my comfort zone. So I personally wouldn't freelance. I think freelance करना है, अगर आप temporarily करें तो ठीक है. अब temporarily, especially अगर आपके पास कोई job experience नहीं है, तो you know freelancing is better than not having any side projects at all. उसके बाद अगर उसके अलावा भी आपने freelance करना है, फिर उसके बाद I think freelancing would only make sense if you are at a very superior level, जिसमें you know like आप बस individually आप as a self-employed consultant of sorts. So, but I personally wouldn't. मेरे लिए तो नहीं चल रही. आई थिंक पर्सन टू पर्सन काफी वेरी कर देगा. इफ समबडी likes you know being on their own, so it's fine for them. Okay, so I think we'll just do 2 more questions since we're already going over time. So since Azan talked about working hours के side पे freelancing करना मुश्किल हो जाता है, तो can you guys talk about how your working hours are like उस लिहाज से, so people have an idea. So वर्किंग आवर्स जो है वो मेरा ख्याल है कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं और कंपनी कल्चर के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। कुछ किसी की तो बड़ी मतलब हार्ड डेडलाइंस होती हैं, जैसे 9 to 5, मतलब 9 बजे आपने ऑफिस आना है, 5 बजे आप ऑफिस से जा सकते हैं। और कुछ के लेट्स से अगर चूँकि पाकिस्तानी कंपनी ज़्यादा यूएस क्लाइंट्स के साथ काम करती है, तो नाइट शिफ्ट भी होती है। लेट्स से आपने 3 बजे आना है, रात 12 बजे जाना है, इस तरह की भी टाइमिंग्स होती हैं। तो अगर अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ जो आरबी सॉफ्ट के अंदर तो ज़्यादातर ये है कि इट्स
देयर इज नो टाइम आउट। आप जो है ओके आपको 8 to 9 आवर्स अ डे आपको काम करना है, वो लाजमी है, लेकिन उसकी वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप आपकी इंटरनल टीम जो है मतलब आरबी सॉफ्ट के अंदर तो लेट्स से कुछ 400-500-600 लोग होंगे, लेकिन आपकी जो इंटरनल टीम है वो 5-6 लोगों की है। हर टीम में तकरीबन छोटा साइज ही होता है जो एक सेपरेट टीम होती है। तो वो टीम डिसाइड करती है बेसिकली कि हमारे वर्किंग आवर्स क्या होंगे। हम सुबह बैठना चाह रहे हैं, हम रात को बैठना चाह रहे हैं, हम आधी रात को बैठना चाह रहे हैं, या एसिंक्रोनस काम करना चाहते हैं, सिंक्रोनस काम करना चाहते हैं। तो 8 आवर्स मस्ट है, किसी भी कंपनी के अंदर काम करें मिनिमम 8 आवर्स जो है वो तो पर डे लाजमी है। लेकिन वो जो है आप डिसाइड कंपनी वेरी करता है कि वो उसकी वो क्या होगी, टाइमिंग उसकी एग्जैक्टली क्या होगी, आप चेंज भी कर। ये भी है कि yeah, Zara can go ahead. I think Nabil, you can go ahead. मैं कहता हूँ like Azan said minimum 8 hours होते हैं, but काफी companies में there is no maximum limit. तो I personally know a friend जिससे मैं काम कर रहा था. He works around 60 hours a week, and he's really hardworking. He's happy to put in the 60 hours a week, but he's not being paid for it. As in, he's not being paid well enough कि जितना वो काम कर रहा है. He's being paid slightly above the standard rate, but उतना नहीं है जितनी वो amount of effort डाले. तो उसपे भी आप वॉच आउट के लाइक जस्ट बिकॉज अगर आपने काम पूरा करना है तो आप कितना आपने हाउ मच आपने अपने वीकेंड पे भी आप पहले लेट ओवरनाइट भी लगा रहे हो और फिर आप वीकेंड भी अपना आधा ज़ाया कर देते हो. तो लाइक डू यू थिंक दैट्स वर्थ इट फॉर यू और नॉट? एंड इफ even if you think that's worth it, like do you think that you are being compensated for that fairly? I personally am against working more than 45 या कभी कभार 50 is मेरे ख्याल में personally 50 is the absolute limit usually, but like 40 to 45 is a good number of hours per week. But ये देखना है कि maximum hours कुछ companies पे होती नहीं है. Zara? I think they have covered all. Okay. So last question, it's about the GPA. So do you guys think a GPA is very, very important when looking for jobs, or are skills more important? Or do you think they're both equally important? GPA does play a role. GPA shows कि एक बंदा consistent है. He's consistently putting his effort throughout अपनी academic culture में academic लाइफ साइकिल में. तो अब वो जब इंडस्ट्री में आएगा तो वो भी तब भी कंसिस्टेंट होगा और तब भी कंसिस्टेंटली मेहनत करेगा. तो दिस इज वन थिंग कि ना जीपीए इस वजह से इम्पोर्टेंट होता है. पर देयर आर पीपल के ना मतलब से ना जैसे सोशल साइंसेस वाले सब्जेक्ट में काम नहीं होता, तो अब वो उनका जीपीए इतना ऊपर नहीं रह पाता जितना जैसे कि जो एक बंदा है जो हर चीज पे कमाल है उस पर कर लेता है. तो आई विल से जीपीए इम्पोर्टेंट है, आपकी एक्सपेक्ट को दिखाता है. स्किल्स टू लाइज अराउंड, मगर मैं कहती हूँ कि अगर आपका कम जीपीए ना तो आपको थोड़ी मुश्किल होती है फाइंड करने में. The way I see GPA is, yes, please, Nabil. I was just gonna say that I don't think a 4.0 GPA makes that. GPA matters, but like to a certain extent, 4.0 GPA का जितना आपको लम्स में फायदा होता है उतना इंडस्ट्री में फायदा नहीं होगा, in my personal opinion. और बस ये कहना चाहूँगा कि अब yeah. और Sorry? Can you repeat that? I'm saying 4.0 is a crazy GPA, only people get that. No, doesn't have to be 4.0, like 3.9, 3.8, 3.85 above. जितना आप लोगों को यूनिवर्सिटी में like 3.9 और 4 वाली कैटेगरीज को जितना वो चेरिश किया जाता है वो इंडस्ट्री में उतना it doesn't translate to class. That's what I meant. Yeah, that's the point. मुझे लगता है कि शायद ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर भी, कि काफ़ी कंपनीज जो है वो अब जीपीए नहीं भी देख रही हैं. सो अगर मैं स्पेसिफिकली आरबी सॉफ्ट की बात करूं तो मतलब उन्होंने तो बड़ा क्लियरली गाइडलाइन में लिखती है कि इफ़ यू कैन पास दिस आर इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट तो इट डजेंट मैटर कि आपका जीपीए क्या है. ज़ारा की बात बिल्कुल ठीक है, वो कंसिस्टेंसी आपकी शो ज़रूर करता है, लेकिन अगर आपका जीपीए बहुत कम नहीं है, लेट्स से बिलो 3 ठीक है, वो कम लगता है, लेकिन अबव 3 आई बिलीव इज़ फाइन. लाइक उसका कोई नेगेटिव इंप्रेशन इतना नहीं है. हाँ, अगर आपने मतलब रिसर्च ओरिएंटेड है और आपने एडमिशंस के लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन जॉब के लिए जो है वो उतना मैटर नहीं करता जितना बाकी किसी चीज़ के लिए करता है. On that note, there are also companies who hire people without a computer science degree.
Like I have people in my company who don't have computer science degrees and are working full time. Okay, with that, I think we've come to the end of our session. I personally had a lot of fun and I think I got a lot of insight. So, like, endings are for me, but so I hope you guys had fun as well. And thank you for sharing. We at the end of every session. So I think I'm gonna do that now. Okay, it's done. Thank you. Thank you for taking out time. It means a lot. And I'm just very bad with endings. So sorry. No worries. Don't worry, you're fine. Don't worry. Okay. It was great talking to you, and you guys were great, great moderators. So Thank you. Thank you so much. Okay. बहुत शुक्रिया. thank you for Allah having. Hafiz. Allah Hafiz. Yeah. Yes. इतना क्यूट है एंड पे. यार मुझे इंट्रोडक्शन में एंडिंग सबसे बुरी लगती है Same. और दोनों मेरी किस्मत में कल है। मैंने अनुषा को मैसेज किया था कि मुझे कुछ बताओ मैं किस तरह से एंड करूंगी ना मैं ऑकवर्ड हो जाऊं. फिर अनुषा ने कहा था कि उनको यार क्या इनको मजा आया. प्रमोट करना है? करो। यार मैं इतनी ऑकवर्ड हो जाती थी बीच में और मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बोलूं। वैसे इतना कंट्रोल कर रही थी कि वो वुमेन इन वर्क स्पेसेस वाला पार्ट 2 ना हो जाए और फिर मैं इतना को तेरी से नहीं तुम लोगों ने सही किया. एक अच्छी थी मॉडरेशन. इट इज वेरी क्यूट. यार अच्छा किसको करना है आना है जिसने आना चैट पे लिख दे। प्लीज रेज योर हैंड्स. हाँ रेज योर हैंड। अनुषा तो नहाने गई है मुझे लगता है. उसको प्रमोट कर दिए। मेरे को कर दो। मैं एपी नहीं कर रही. समय भी पे कर दिया फिर मैं मुन्ना को कर दो मामा को कर दो आयशा को कर दो सबको ही कर दो फिर जो हुआ ठीक है। मुझे लगता है सबने डिस्कनेक्ट किया हुआ है. अच्छी बात है मेरी बातें नहीं सुन। अब अगला कौन कौन कर रहा है मॉडरेट. हाँ। अनुषा और हेरा हाय हेरा के मैंने देख लिया। हेरा मेरे से ना ज्यादा ऑकवर्ड है तो बस देखो तुम मैं तो अनुष्या से सीख लिया ना आहिस्ता आहिस्ता कर करके 2 दफा 3 दफा मैं सीख लिया एक्सपीरियंस हो गया मुझे थोड़ा सा तो इसने तो सुना ही नहीं मेरा तो अभी मुझे कैसे बताएगी मैं कैसी थी जिसने मुझे सिखाया वो ही नहीं बताएगी। सुन लेगी लाइव पे जाके. मेरी तुम भी मेरी जैसी हो तो तुम्हारी बात पे मैं क्या ही फील करूँ। अच्छा था। देखो सबने डिस्कनेक्ट की हुई ऑडियो. मैंने तो की हुई है. वो अच्छी बात है ना मैं तो खुश हूँ मैं बच गई जो
वो फिर डॉक्यूमेंटेशन वाली बात में ना मुझे याद आ गया जो सर बोलते होते थे, मैं तो आप लोगों को करवा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को इंडस्ट्री में जाके इश्यूज ना हो, आप लोगों को पता हो ये सब क्या है। और फिर अजान भी वो एससी का टीए था, वो मुझे याद था। अल्लाह बड़ा फनी था। जान आप कुछ कहना यार चाहेंगे? वो फिर बहुत ज्यादा वो हो रहा था, तो फिर मैंने बोला मैं थोड़ा हा ही कर, सॉरी शिट हम लाइव हैं। मेरीन क्या करती हो भाई तुम मेरी, मेरीन मेरीन अब मैं तुम्हें क्या बोलूं। हम कर सकते हैं ना एंड वाला पार्ट, रुको मैं हाँ मैं करती हूँ। थैंक यार कसम।